written agreement. Alliance is a written agreement which is usually proposed by a powerful country. Which is usually proposed by a powerful country to a single nation or a group of nation. To a single nation or a group of nation for military protection. Alliance can have multiple aspects. For example, this is a set. It has multiple subsets. The larger and the most dominant set in this alliance is military. Okay? Military protection. It is given by a powerful nation, usually to nations which are less powerful, but which are having similar cultural values, economic values, political values. डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, कल्चर रिलीजन अगर सेम है वो तो बहुत ही अच्छा हुआ फिर, ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स एंड अ पावरफुल नेशन ऑफर्स समथिंग टू लेस पावरफुल नेशंस और ग्रुप ऑफ नेशंस, ठीक है, फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शन. इट मींस दैट इफ you are being attacked, I will consider this attack ये मेरी सॉइल पे हुआ, even if उस कंट्री ने आप पे अटैक किया. The best example of alliance is NATO, North Atlantic Treaty Organization, NATO. It was after the wake of Second World War. NATO was created by USA group, USA led alliance है ये. USA democratic state, capitalist state, ठीक है. The ideology is different. It was the similar ideology countries को पकड़ के ला रहा था कि मेरी alliance को join करो, और लोगों ने join किया भी, countries ने join किया भी, and they formed a very powerful group known as NATO. In this NATO, if you are annexing or attacking any country, it is attack on all of those countries. ठीक है. For example, 9/11 में अटैक हुआ on the Twin Towers in United States of America. खाली अमेरिका अफगानिस्तान पे लड़ने नहीं गया वहाँ. It were all the NATO nations because it is considered as a threat or attack on everybody. Alliance में ऐसे ही similar alliance was created by USSR. It is a socialist state. ठीक है. Created this alliance known as Warsaw Pact. पोलैंड की एक सिटी है वार्साव, वहां पे इसने बनाया सोशलिस्ट ब्लॉक. ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ये सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है. तो बेसिकली दे वर ट्राइंग टू सेट देयर इकोनॉमिक ऑर्डर. तो इन्होंने अपने हिसाब से अपनी अपनी कंट्रीज को लाया अलायंस में, इसने अपनी अपनी हिसाब से लाया. अब अगर कोई इसको अटैक करेगा इसमें से किसी कंट्री को, इट इज कंसिडर्ड टू बी अटैक ऑन एवरी कंट्री इंक्लूडिंग यूएसएसआर. ठीक है. देयर वर टू मेजर पावर ब्लॉक्स एंड दे डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू पार्ट्स. वन वाज लेड बाय यूएसएसआर, वन वाज लेड बाय यूएसए. एंड अलायंस इन्होंने, इसने भी क्रिएट की, इसने भी क्रिएट की. अब पावरफुल कंट्री gave an suggestion, gave an opinion, and rest of them agreed upon it in lieu of their military protection. अब इस पावरफुल नेशन को मिलता क्या है? इस पावरफुल नेशन को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, फ्री मार्केट एक्सेस मिलता है इन कंट्रीज में, ठीक है. तभी ये कर रहा है ये सब. एक तो इसको आइडियोलॉजी जो अपनी है कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी की, इसको प्रोटेक्ट करेगा. दूसरा, दिस कंट्री विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद अनदर कंट्रीज, तो उधर उसको फ्री मार्केट भी मिलेगा, फ्री ट्रेड भी मिलेगा, टैक्स फ्री होगा या कुछ और रेगुलेशन फ्री होगा, वीजा का एक्सेस इजी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन द मेन थिंग इज व्हाट? द मिलिट्री प्रोटेक्शन. एंड द बेसिस फॉर दिस इज सिमिलर कल्चरल वैल्यूज, सिमिलर इकोनॉमिक वैल्यूज, सिमिलर पॉलिटिकल वैल्यूज. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अलायंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अनदर वर्ड इज, हम सब कुछ लिखेंगे. अनदर इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. Strategic partnership. In this strategic partnership, there are two countries, country A and country B. Country A is a powerful nation. Its polity is strong. Country B is a powerful nation. Its polity is strong. They don't want a military alliance. They don't want a military alliance. But they want everything an alliance offers except military protection. This country can defend itself. This country can defend itself. Attack on this country does not mean attack on this country. Attack on this country does not mean attack on this country. Taking military aspect out of alliance
बाकी सब वहीं पे रहेगा, इकोनॉमी, ट्रेड, वैल्यूज, सब कुछ प्रिंसिपल्स, बट मिलिट्री एस्पेक्ट को बाहर रख के दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विदाउट मिलिट्री एक्सेस. फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज a strategic partnership agreement with Japan. It means attack on Japan is not attack on India. Attack on India is not attack on Japan, but they will have free trade. They will have some nuclear deal. They will have some environmental protection deal. ठीक है? They will copy each other's model of creating smart cities. They will have liberalized visa access. बहुत कुछ होगा. इनकी कंपनी को यहाँ पे टैक्स कम देना पड़ेगा या कुछ और देना पड़ेगा, इनकी कंपनी को यहाँ पे देना पड़ेगा, वो इशू रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन मिलिट्री वाला एस्पेक्ट नहीं है. मिलिट्री के बगैर इट मींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज वन स्टेप लेस देन अलायंस. दैट वन स्टेप इज मिलिट्री. टेक मिलिट्री आउट ऑफ द अलायंस, इट इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है. तो न्यूज़पेपर में, कॉलम्स में, एडिटोरियल्स में और बुक्स में भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं. Hyphenation and dehyphenation. This is another important term with respect to international relations. Hyphenation and dehyphenation. For example, United States of America है एग्जाम्पल के तौर पर. इन द कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर जब यूएसएसआर और इसके बीच जंग चल रही थी, दो मेजर पावर ब्लॉक्स थे, वन डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट, अनदर सोशलिस्ट पावर ब्लॉक. यूएसए है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यहां से यूएसएसआर है. यूएसएसआर चाहता है कि ये हमारे ग्रुप में आए, यूएसए चाहता है ये हमारे ग्रुप में आए. ठीक है. अब लेकिन ये दो आपस में दुश्मन है, समझो इस बात को. ठीक है. ये दो आपस में दुश्मन है, ये दो आपस में दुश्मन है. ये चाहता है ये भी हमारे ग्रुप में है, ये चाहता है हमारे ग्रुप में नेटो का पार्ट बने, ये भी चाहता है हमारे वार्सो पैक्ट का पार्ट बने, हमारे वार्सो पैक्ट का पार्ट बने, लेकिन दोनों दुश्मन है. अब ये कुछ इसके फेवर में चीज करता है. किसके फेवर में? इंडिया के फेवर में. If it does something for India, USA is doing something for India, it is keeping in mind कि मैं जो इसको ये फेवर कर रहा हूं, इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए. किसको? पाकिस्तान को. This is known as hyphenation. When you are doing something for a particular country, keeping the interests of another country in mind. Doing something for Pakistan, but हिंदुस्तान को गुस्सा नहीं आना चाहिए. उतने ही तरीके से चलेंगे जैसे दोनों का बैलेंस बराबर रहे. दिस इज नोन एज हाइफिनेशन. अब क्या होता है? डीहाइफिनेशन. यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, कोई पावर ब्लॉक नहीं रहा, ओनली सिंगल सुपर पावर रिमेन, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब इसको कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि अगर ये नाराज भी होगा जाएगा कहां? अगर ये नाराज भी होगा जाएगा कहां? क्योंकि द सेकंड ब्लॉक इज एब्सेंट. नाउ इट विल डील विद इंडिया जैसे इसको फिट लगेगा यूएसए को. नाउ यूएसए विल डील विद पाकिस्तान जैसे इसको फिट लगेगा. ये अगर नाराज भी होगा कोई इशू नहीं, ये अगर नाराज होगा कोई इशू नहीं. इट मींस यूएसए हैज डीहाइफिनेटेड द रिलेशंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? USA has dehyphenated the relations. If USA has hyphenated the relations, then it is considering the interest of another country if it is doing something for India. Are you understanding? ठीक है. This is known as hyphenation and dehyphenation. ये भी लिखेंगे हम. Another thing is paradiplomacy. Another term is paradiplomacy. Paradiplomacy is something when you have constituents of a state, constituents of a nation. What are the constituents of a nation? States, different states. India has been different states का एक amalgamation है. West Bengal, Jammu and Kashmir, अभी UT, Punjab, Haryana. ठीक है. The state when it is involved in diplomacy, सेंटर को साइडलाइन करके, when a state is involved in diplomacy, sidelining what? Center. Without the involvement of center, that is known as paradiplomacy. It is a tactic which is being used by the center itself.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड दिस इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया, दिस इज बांग्लादेश, दिस इज इंडिया. देयर इज सम बॉर्डर इशू विद रेस्पेक्ट टू इंडिया एंड बांग्लादेश. देयर इज सम बॉर्डर इशू विद रेस्पेक्ट टू इंडिया एंड बांग्लादेश. अब यहां पे बांग्लादेश चाहता है कि दैट इंडिया हैंड्स ओवर समथिंग ऑफ देयर पोर्शन उनके एरिया में, एंड मैं उनको यहां से थोड़ा सा पोर्शन दे देता हूं इन एक्सचेंज. ऐसा हुआ भी है, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स कहते हैं इसको. यू विल स्टडी दिस इन पॉलिटी. तो बांग्लादेश चाहता है आई वांट दिस पोर्शन, इंडिया चाहता है, मतलब ये कहता है कि इंडिया को मैं इसको इसके बदले यहां से जमीन दे दूंगा, मेरा बॉर्डर सेटल हो जाएगा अच्छे से, ठीक है. बट इंडिया विल टेल बांग्लादेश, हालांकि इंडिया देना नहीं चाहता, अगर डायरेक्टली ना करेगा देन इट विल हैम्पर द रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया. इंडिया विल टेल बांग्लादेश दैट इन इंडिया द लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंड देयर इज अ डिफरेंट चीफ मिनिस्टर of different political party which is not having the same ideology as ours. तो ये हम कर नहीं सकते क्योंकि लैंड किसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में. हम लैंड ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकते. वी आर एक्सट्रीमली सॉरी. वंस द पॉलिटिकल पार्टी चेंज या हमारे आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वी विल डू इट. तब तक आप उनको क्या रखोगे, फ्रेंडशिप के दायरे में, न कि आप उसको सीधे नकार करोगे. हालांकि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू विल स्टडी सेंटर कैन डू दिस एज वेल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट. स्टेट को पूछे बगैर स्टेट की जमीन दे सकता है. इट नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट की जरूरत नहीं है, यू नो, फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है. फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज को सेटल करने के लिए स्टेट की परमिशन, स्टेट की इंटरवेंशन, अगर स्टेट की स्टेट लिस्ट में लिखा है कुछ, उस पे भी लॉ बना सकता है क्या, सेंटर. वरना स्टेट लिस्ट पे लॉ सेंटर नहीं बना सकता. लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को एनफोर्स करना है, देन सेंटर कैन यूज दिस पावर्स एंड मेक अ लॉ इवन ऑन सब्जेक्ट दैट इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ये यहां पे यूज नहीं करेगा. इट विल जस्ट बिलीव सम. और स्टेट इज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग विद द कंट्री सेंटर के इन्वॉल्वमेंट के बगैर. बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द टर्म पैरा डिप्लोमेसी. Are you understanding? Another important thing is strategic depth. Strategic depth. Usually you will see this thing in newspapers. ठीक है? Strategic depth ये क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक है, इंडिया है, पाकिस्तान है. अफगानिस्तान हैड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पहले अशरफ गनी की, उसके बाद तालिबान टुक ओवर, तालिबान 2.0. लेकिन जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, देयर वाज वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. इंडिया इन्वेस्टेड इन अफगानिस्तान, ठीक है. इंडिया मेड अ रेल रोड नेटवर्क थ्रू ईरान दैट कनेक्ट्स अफगानिस्तान. जरांज दिलाराम प्रोजेक्ट, ठीक है, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पार्लियामेंट बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, वहां पे बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट किया. इंडिया इन्वेस्टेड, मेक ए गुड रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान. अब अफगानिस्तान की अशरफ गनी गवर्नमेंट वाज डिसमेंटल्ड एंड तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान, ठीक है, तालिबान 2.0. नाउ Pakistan wants that this government, new government, should be in favor of Pakistan, pro-Pakistan. India wants that this government should be pro-India, in favor of India. क्योंकि अभी ये पता नहीं ये किसके फेवर में रहेंगे. इशू इनके अनस्टेबल किस, ठीक है, ये इधर जाएं, ये उधर जाएं, ये कहाँ जाएं, ये नहीं पता है. तो they will do every possible thing to keep this government pro-India. They will do every possible thing to keep this government pro-Pakistan. लेकिन अगर ये सब करने में आप वो एफर्ट्स भी डालते हो कि ये जो गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट को नेगेटिवली देखे. एक होता है पॉजिटिव इंपैक्ट, मैं चाहता हूं तुम मेरे दोस्त बनो, ये चाहता है ये भी आपका दोस्त बने.
मैं आपको अपनी अच्छाइयां बता रहा हूं, हमारी दोस्ती कैसे रहेगी ये भी आपको बता रहा है, दैट इज फाइन। लेकिन मैं आपको अपनी अच्छाइयां बता रहा हूं, उसकी बुराइयां बता रहा हूं। ये आपको अपनी अच्छाइयां बता रहा है, मेरी बुराइयां बता रहा है। व्हेन यू आर कीपिंग अनदर कंट्री away from some other country's interests using diplomacy, that is strategic depth. समझ आया? Yes. When Pakistan is keeping India away from the interests of Afghanistan and wants Afghanistan to be pro-Pakistan, that is strategic depth. अगर ये खाली अपनी बातें करता, इंडिया को साइडलाइन करने की कोशिश नहीं करता, इस पे ये नहीं करता, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की परफेक्ट डेफिनेशन इस पे फिट नहीं बैठेगी। तभी फिट बैठेगी जब आप तीसरी कंट्री को, जो थर्ड कंट्री है, उसको साइडलाइन करना चाहोगे। आप इसको साइडलाइन कर रहे हो, उसमें भी एफर्ट्स डाल रहे हो और इसमें भी एफर्ट्स डाल रहे हो कि आप खुद भी गुड बुक्स में आ जाओ इस कंट्री के। इंडिया इज पुटिंग एफर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान कि गुड बुक्स में आ जाए ये दोनों एक दूसरे के, और इन द मीन टाइम पाकिस्तान को बाहर कर दे इक्वेशन में। सेम पाकिस्तान इज डूइंग, गुड बुक्स में लाना चाहता है ऐसे, और इंडिया को इक्वेशन से निकालना चाहता है। एंड दिस सिनेरियो इज नोन एज स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्रैक वन डिप्लोमेसी, ठीक है। यूजुअली ऑन द न्यूज़पेपर्स यू हियर दिस थिंग, यहां पे लिखा होता है ट्रैक वन डिप्लोमेसी। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ट्रैक वन डिप्लोमेसी मींस स्टेट एक्टर्स, ऑफिशियल स्टेट और दूसरा स्टेट एक्टर्स, व्हेन one state's official members and other states' official members are involved in diplomacy, that is known as track one diplomacy. That is known as track one diplomacy. यहाँ के officers, bureaucrats of India are negotiating or talking with the bureaucrats and officials of China. This is track one diplomacy, or America, or Britain, whatsoever. Are you understanding? Yes. Track two diplomacy. When the non-state actors of one country are involved with the non-state actors of another country, that is track two diplomacy. Non-officials from India, for example, Adani is having a conversation with Elon Musk. So non-official actor of India, non-official actor of United States of America. ठीक है? Adani is having a conversation with Jack Ma, चाइना वाला, ठीक है, वहां का बिलियनियर, वहां का सबसे अमीर। This is या NGO या कोई ऐसा informal organization is talking to some informal organization. If this is happening, this is known as track two diplomacy. If officials are engaged, it is track one diplomacy. Another is track 1.5 diplomacy. Common sense, sir? When officials and non-officials of one country are engaging in diplomatic relations with officials and non-officials of another country, this is known as track 1.5 diplomacy. Bureaucrats भी, politicians भी, corporates भी, NGOs भी, वहाँ से भी same. When they are having a diplomatic talk between them, this is track 1.5 diplomacy. जहाँ पे भी ये लिखा होगा आपके दिमाग में अब आना चाहिए track 1.5 क्या है, track 2 क्या है, track 1 क्या है. Another is track 3 diplomacy. When the normal people of one country are engaging with the normal citizens, normal people of another country, no official or no bureaucratic corporates, NGOs, ऐसा कोई involved नहीं है. And this diplomacy usually happens near borders, where there are porous borders. One group can easily talk to another group or have relations. शादियां भी करते हैं कभी एक दूसरे के साथ. And another, जहाँ पे बॉर्डर में आना जाना बहुत इजी होता है वहाँ के लोकल्स के लिए, ठीक है. दैट इज नोन एज ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, व्हेन इट इज द शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट्स, शेयरिंग ऑफ डायलॉग, शेयरिंग ऑफ नॉलेज बिटवीन द कॉमन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो लाइमलाइट में नहीं है, जो ना कॉर्पोरेशन में है, कैपिटलिस्ट में, जो ना पावर में, जो ना ब्यूरोक्रेट्स है. तो वो यूजुअली होता है ये लोकल लेवल पे नियर द बॉर्डर्स, वेयर द बॉर्डर इज पोरस एंड द रिलेशनशिप इज गुड. कनाडा यूएसए का बॉर्डर, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज उनका बॉर्डर,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसा नहीं है, ठीक है। When this is people to people conversation is there, this is track 3. When non-official, this is track 2. When official of one state and another state, track 1. When non-official and non-official of another state, this is track 1.5. These are the things which you should remember with respect to international relations and before starting international relations as a subject. Okay, you write now. Alliance. It's based on